गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सौरभ कुमार गौतम, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झालावाड़, ई लेक्चर्स की श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम सब सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट CS205 बेसिक्स ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के चैप्टर 2 नंबर सिस्टम के अंतर्गत सम्मिलित टॉपिक हैमिंग कोड के बारे में अध्ययन करेंगे, जो बेसिकली एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन कोड के अंतर्गत आता है। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को पढ़ने के दौरान विली पब्लिकेशन के अंतर्गत डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बाय अनिल कुमार मनी सर की जो बुक है उसको रेफरेंस के तौर पर लिया गया है। सो लेट्स स्टार्ट। We have seen in the case of the error detection and correction codes how an increase in the number of redundant bits added to the message bits can enhance the capability of the code to detect and correct error. If we have a sufficient number of redundant bits and if these bits can be arranged such that different error bits produce different error results, then it should be possible not only to detect the error bit, also to identify its location. In fact, the addition of redundant bits alters the distance code parameter, which has to come to be known as the Hamming distance. The Hamming distance is nothing but the number of bit disagreements between two code words. For example, the addition of single bit parity results in a code with a Hamming distance of at least 2. The smallest Hamming distance in the case of a threefold repetition code would be 3. तो अभी स्टूडेंट्स हम आगे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के जरिए भी जानेंगे कि व्हाट इज एक्चुअली अ हैमिंग कोड। हैमिंग डिस्टेंस की बात हो रही है कि दो कोड्स में कितने बिट्स डिफरेंट होते हैं, उसी को हम हैमिंग कोड कहते हैं। हैमिंग नोटिस्ड दैट एन इंक्रीज इन डिस्टेंस enhance the code's ability to detect and correct errors. Hamming's code was therefore an attempt at increasing the Hamming distance and at the same time having as high an information throughput rate as possible. स्टूडेंट्स, हमने जब पैरिटी बिट वाला टॉपिक आपके साथ डिस्कस किया था तो एक बात कही थी कि जब हम रिडंडेंट बिट्स को ऐड करते हैं हमारी मेन डेटा स्ट्रीम बिट्स के साथ, तो इट इज़ वेरी यूज़फुल। अच्छा होता है कि उनके द्वारा एरर डिटेक्ट होती है, बट एट द सेम टाइम क्योंकि इन रिडंडेंट बिट्स के द्वारा कोई इंफॉर्मेशन कैरी नहीं किया जाता है, तो ये रेट ऑफ ट्रांसमिशन और वी कैन से एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसमिशन को डिक्रीज कर रहे थे। किंतु हैमिंग कोड के द्वारा इस डिसएडवांटेज को दूर किया गया है। लिखा भी है एट द सेम टाइम हैविंग एज हाई एन इंफॉर्मेशन थ्रूपुट रेट एज पॉसिबल। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो जर्नलाइज्ड हैमिंग कोड है वो वर्क करता है।
The algorithm for writing the generalized Hamming code is as follows. The generalized form of code is P1, P2, D1, P3, D2, D3, D4, P4, D5 and so on, where P and D respectively represent parity bits and data bits. अभी हम देख रहे हैं कि कहाँ पैरिटी बिट्स आ रही हैं, कहाँ डेटा बिट्स आ रही हैं, तो अभी हम एक जनरलाइज फॉर्म देख रहे हैं. अभी हम इनका स्थान भी फिक्स करेंगे. We can see from the generalized form of the code that all bit positions that are powers of 2, that means 2 की power 0, 2 की power 1, 2 की power 2, 2 की power 3, 2 की power 4, that is 1, 2, 4, 8, 16, are used as parity bits. तो आप देख सकते हैं 1, 2, देन 4, जो फोर्थ पोजीशन है, यहाँ इसको लिखा P3 है, लेकिन अगर हम पोजीशन देखेंगे तो इसकी फोर्थ है. तो इस तरीके से हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे. All other bit positions 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11 are used to encode data. Okay, each parity bit is allotted a group of bits from the data bits in the code word, and the value of the parity bit, either 0 or 1, is used to give it certain parity. Groups are formed by first checking n-1 bits and then alternately skipping and checking n bits following the parity bit. Here n is the position of the parity bit, 1 for P1, 2 for P2, 4 for P3, yes. Now we will discuss a specific case. The Hamming code is capable of correcting single bit errors on messages of any length. Although the Hamming code can detect 2-bit errors, it cannot give the error locations. So students, दो थिंग्स हैं, डिफरेंट थिंग्स हैं, एक एरर को डिटेक्ट करना और एक उस एरर को करेक्ट करना. ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखें. The number of parity bits required to be transmitted along with the message, however, depends upon the message length. The number of parity bits required to encode m message bits is the smallest integer that satisfies the condition 2 to the power number of parity bits minus number of parity bits greater than number of message bits. ये इनइक्वलिटी इटसेल्फ बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का, कि अगर किसी मैसेज की साइज m बिट्स हैं तो कितनी पैरिटी बिट्स की ज़रूरत होगी कि वो हैमिंग कोड का जो क्राइटेरिया है उसको सेटिस्फाई कर दे. सो द आंसर इज लाइक दिस, 2 to the power n minus n greater than m. अब आपके सामने एक टेबल हमने शो की है जिसमें जनरेशन ऑफ हैमिंग कोड के बारे में बताया हुआ है. डेटा बिट्स विदाउट पैरिटी, डेटा बिट्स विद पैरिटी बिट P1, डेटा बिट्स विद पैरिटी बिट P2. लेट्स इसको हम डिस्कस करेंगे. द मोस्ट कॉमनली यूज्ड Hamming code is the one that has a code word length of 7 bits with 4 message bits and 3 parity bits. It is also referred to as Hamming 7,4 code. तो इस कोड पर ही आपके सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आती है. हैमिंग कोड की जो हम बात करते हैं 7,4, तो इस 7,4 का क्या मतलब है कि साहब जो ये 7 है ये तो टोटल बिट्स हैं आपके, जिसके अंदर की मैसेज बिट्स और पैरिटी बिट्स मिली हुई हैं, और ये जो बाद वाला 4 है ये नंबर ऑफ मैसेज बिट्स को बताता है, यानी कि ये है 4.
The code word sequence for this code is written as P1, P2, D1, P3, D2, D3, D4, with P1, P2 and P3 being the parity bits and D2, D1, D2, D3, D4 being the data bits. ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। और ठीक जो हमने ऊपर डिस्कस किया था कि पैरिटी बिट किस पोजीशंस पे आती हैं, पावर्स ऑफ 2, 2 की पावर 0 दैट इज़ 1, 2 की पावर 1 दैट इज़ 2, 2 की पावर 2 दैट इज़ 4। तो आप इनकी पोजीशन देख सकते हैं, पहली पोजीशन, दूसरी पोजीशन और ये चौथी पोजीशन, और बाकी आपके डेटा बिट्स हैं। We will illustrate step by step the process of writing the Hamming code for a certain group of message bits, and then the process of detection and identification of error bits with the help of an example. So students, Hamming code के लेवल पर आपको इतना याद रखना है कि Hamming code एक error correction and detection code है। सिंगल एरर को कैन बी डिटेक्टेड एंड करेक्टेड एज वेल, जबकि 2 बिट एरर्स को ये केवल डिटेक्ट करता है। और साथ ही साथ जो सबसे फेमस हैमिंग कोड होता है वो 7,4 कोड होता है, और यहाँ पर आपको इसकी पैरिटी बिट की और मैसेज बिट्स की लोकेशन याद होनी चाहिए। आशा करता हूँ कि ये लेक्चर आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा और आगामी परीक्षाओं में आप इसका उपयोग कर पाएंगे। साथ ही साथ पूर्ववर्ती परीक्षाओं में जो हैमिंग कोड पर आधारित प्रश्न पूछा गया है, हम उसको आपके साथ शेयर करेंगे। धन्यवाद।